ابھی وقت ہے کہ آپ سب کی تالیاں میں خدا کے خادم کو دعوت دیں. شکریہ. آئیں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلع باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلب باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک عالمگیر کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیونے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. ہالیلویا. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے موسیٰ کو معجزوں کا خدا اختیار دیتا ہے. موسیٰ کو خدا اختیار دیتا ہے کہ وہ معجزے کرنا شروع کرے. آج بھی خدا کچھ خاتموں کو اختیار دیتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے معجزات ہوں. حالانکہ ہم یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ بھاگ رہا تھا. وہ اس خدمت سے کیا کر رہا تھا؟ بھاگ رہا تھا. ابھی جیسے سمیرا نے بھی بات کی کہ کویت کے ممبران، ٹیم کے کچھ ممبران اپنی خدمت سے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں. یہاں پہ ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے اور وہ بھاگتا ہے. اپنے خدا فرعون کو مقرر کر دیتا ہے. آج بھی آپ کی جو خدمت ہے اس کو پہچانیں. خدا جو خدمت دینا چاہتا ہے اس کو کریں، نہیں تو آپ کی خدمت کسی اور کو مل جائے گی اور پھر آپ گلے کرتے پھرتے ہیں، لیکن پہلے نہیں دیکھتے کہ میں کتنا وفادار ہوں، کتنی کی وفاداری سے میں خدمت کر رہا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایک مالک کی خدمت کریں. دائیں بائیں بھاگنا بند کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کچھ نہیں حاصل ہونے والا، کوئی برکت نہیں. اس طرح آپ اپنی پہچان کو بھی کھو دیتے ہیں. آپ کی جو پہچان ہوتی ہے کئی بار آپ اس کو بھی کھو دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو خدا کام لینا چاہتا ہے وفاداری سے کام کرنا شروع کریں. آئیں نکالیں ذرا خروج کی کتاب 4 باب، اس کی پہلی ایسے پڑھنا شروع کریں گے.
जब हम ऊपर देखते हैं, पिछली बार मेरा जो टॉपिक था मूसा की बुलाहट, खुदा मूसा को चुनता है और जलती हुई झाड़ी में उससे क्या करता है, कलाम करता है, बात करता है। आज भी खुदा आपको कलाम के वसीला से, अपने खातों के वसीला से आपसे हम कलाम होता है, बात करता है, कलाम करता है। लेकिन आप क्या करते हैं? क्या मूसा को जब खुदा ने कहा मूसा मूसा, तो मूसा ने क्या कहा? मैं कितने और चले हैं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं तो होर कितने और जाना है हाले, फिर अब वापस आकर तेरी गल सुन लूंगा। आज हमारी जिंदगी ऐसे चल रही है, हम पहले दूसरे काम करते हैं और फिर खुदा को कहते हैं खुदा हुण मेरे को टाइम है, हुण मैं तेनू देने लिए तैयार हाँ। ऐसे खुदा टाइम नहीं आपके कबूल करता, खुदा ऐसे कबूलियत नहीं करता। ये ज़हन में रखें, अब जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर कामयाब होना है तो पहले वक्त देना खुदा को सीखे। खुदा जब बुलाता है, बाइबल भरी पड़ी है, जब भी किसी को पुकारा गया खुदा कहता मूसा, मूसा कहता मैं हाजिर हूं। मूसा कहता है सैमुएल को, सैमुएल कहता मैं हाजिर हूं। खुदा जिसको भी पुकारता है, कोई भी बंदा उसको इनकार करने की जरूरत नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आले टोले करते हैं। मैं फलानी जगह जा रहा, वापस आके सुन लाना, तो फिर बरकत भी उतनी ही मिलती है, उतनी ही कामयाबी हमारी जिंदगी में होती है। आप लाखों कमा लेते हैं लेकिन नील है, कुछ भी हासिल नहीं है। रोना धोना हर वक्त हमारी जिंदगी में पड़ा रहता है, क्योंकि हम खुदा को पहला दर्जा देना छोड़ चुके हैं। खुदा याद नहीं है, पैसा भागता है, हम पैसे के पीछे भागते हैं। कुछ पोस्टें अक्सर आती हैं कि एक बंदा पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों की थप्पी आगे आगे उड़ती जा रही है और एक बंदा उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और वो भाग रहा है और रास्ते में जाते जाते उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। आज हमारी जिंदगियां भी शायद ऐसी है, हम भी पैसे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, गर्क कर देते हैं। लेकिन हम खुदा को टाइम नहीं देते। जो पुकारता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तेरे पास। आए जरा देखते हैं क्या हुआ। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेगा। जब खुदा ने उसे कहा तू जा, तो बनी इस्राएल कौम के पास जा, तो उनको बता कि मैं खुदा हूं, मैं इब्राहिम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, मैं याकूब का खुदा हूं, मैंने तुम्हें तेरे पास, मैंने तुम्हारे पास भेजा है। वो कहता वो नहीं यकीन करेंगे। और फिर उसके बाद खुदा उसको कहता है तूने फरौन से ये बातें करनी है, तो फिर भी मूसा क्या कहता है, पढ़े जरा। ना मेरी बात सुनेंगे, ना वो मेरी बात सुनेंगे, वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया, खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। आज कई बार खादमीन भी जब आपकी जिंदगियों के बारे में आपको आगाह करते हैं, तो आप कई बार खादमों की बात का यकीन नहीं करते। वैसे ही मूसा कहता है कि मैं जाऊंगा, तो वो तो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। और शायद इसके पीछे एक वजह थी कि वो क्यों ये बात कहता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। उसकी वजह क्या है, आए जरा इसी की जरा देखेंगे जवाब की 11 से 15 तक। क्योंकि यहां मूसा जब एक मिस्री को मार देता है, तो उसके भाई जो हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। शायद मूसा के ज़हन में वही बात थी कि अब भी जो इस्राएली हैं वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, मैं क्यों उनके पास जाऊं। खुदा कहता तू जा, और वो कहता नहीं, खुदा वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। पढ़े जरा। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ, तबाही अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर इसने इधर उधर निगाह की, और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि दो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। उसने कहा तुझे किसने मुझ पर हाकिम बना दिया है। यही बात मूसा के ज़हन में थी।
वो कहता है कि वो तो मुझे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, शायद आज भी जब मैं जाऊंगा तो मुझे यही कहेंगे। तेनों किसने मुकर्रर करता है? तुझे किसने मुकर्रर कर दिया है हम पे कि तू आके हमारे साथ ये बात करे कि तुम हमारे लड़ाई झगड़े खत्म करने की कोशिश करता है? तुझे किसने मुकर्रर किया है? इसलिए मूसा यहां पे खुदा के सामने ये बात कहता है कि खुदावन मैं क्या करूं? वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। और फिर खुदा क्या कहता है? जी आगे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। फिर उसने कहा कि इसे जमीन पर डाल। उसने कहा इसे जमीन पर फेंक दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गया। वो उसी वक्त क्या बन गई? सांप बन गई। खुदा मोजे की ताकत देता है, कहता है कि तू जाके उनके सामने मोजा करना। उसने कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा इस लाठी को क्या कर, जमीन पे फेंक दे। और जैसे उसने जमीन पे फेंकी वो सांप बन गई और मूसा डर के भागा। मूसा डर गया, ओ ये क्या हो गया? ये तो सांप बन गई है। और वो डर के भागता वहां से। लेकिन खुदा क्या कहता है? इसको इसकी दुम से पकड़ ले। हाँ जी। और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। हाथ बढ़ा और इसकी दुम को पकड़ ले। खुदा मोजात करवाना चाहता था, आज भी खुदा मोजात करवाता है। आज भी खुदा कहता है पकड़ इसको, रख इसके सर पे हाथ, मैं देखूंगा ये तेरा क्या बिगाड़ सकता है। हमें दिलेरी के साथ बुजुर्ग गिरफ्ता के सर पे हाथ रखने की जरूरत है। और जब दिलेरी करेंगे तो वैसे ही मूसा ने उसकी दुम पकड़ी तो वो लाठी बन गई, बेजान लाठी बन गई। आज भी जब हाथ रखते हैं मौजात होते हैं और खुदा बड़े बड़े इब्लीस की तस्वीरों को बेजान कर देता है और वो हाथ खुदा के हाथों के सामने बोलने की भी जरूरत नहीं करती। लेकिन सबसे पहले आपके पास इख्तियार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपके पास ये इख्तियार हो। मूसा को खुदा इख्तियार दे रहा है। आज भी वो आदमी जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा से कहते हैं खुदा मैं हाजिर हूं, तो मुझे दिन बुला, तो मुझे रात को बुला, तो जिस वक्त भी मुझे पुकारेगा मैं तेरे सामने हाजिर हूं। तो खुदा उनको मौजूद की ताकत देता है, कुव्वत देता है। मूसा को कहा इसको पकड़ ले और जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसको पकड़ा, उसी वक्त वो लाठी बन गई, बेजान लाठी बन गई। और फिर क्या आवाज पड़े? उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गई, लाठी बन गया ताकि वो यकीन करे कि खुदावन उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावन ने उसे ये भी कहा कि तू अपने हाथ अपने सीने पे रख ले और इसको ढांप ले। और जैसे उसने ढांप लिया उसने कहा अपना हाथ बाहर निकाल। उसने जब अपना हाथ बाहर निकाला तो उसका हाथ कोर से बर्फ की मानद व्हाइट हो गया, सफेद हो गया। ये दूसरा मौजज़ा है जो खुदा उसकी जिंदगी में कर रहा था, उसको दिखा रहा था कि मैं तुझे तमाम वो बीमारियां जो कोढ़ जैसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, मैं उसका भी इलाज करना जानता हूं। अगर मैं कोढ़ लगा सकता हूं तो मैं कोढ़ को साफ भी कर सकता हूं। उसका हाथ जैसे व्हाइट हुआ तो उसने कहा, वो डर गया और फिर खुदा ने कहा अपना हाथ वापस रख। और जैसे उसने दोबारा निकाला तो हाथ बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले था। ये खुदा दूसरा मौजज़ा उसको दिखाता है। खुदा उसको मौजज़ों की ताकत दे रहा था कि मूसा तो ये मौजज़े कर सकता है, मैं तेरे वसीले से ये मौजज़ात करूंगा। मैंने तुझे चुन लिया है। आज भी खुदा आपको चुनता है। आप देखेंगे खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है। अपनी खिदमत से मत भागे, अपनी खिदमत से भागेंगे तो खुदा जैसे अभी बाद में हम देखेंगे कि खुदा हारून को कहता है जब हारून तेरी ज़बान बनेगा, इसी तरह खुदा आज हमें भी कहता ठीक है तू खिदमत छोड़ता है तो छोड़ दे, मैं तेरे सामने दूसरा खड़ा कर दूंगा और तेरी खिदमत किसी और के पास चली जाएगी। फिर हमें पछतावा होता है, लेकिन पहले हम अपनी खिदमत को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, दुनियादारी में मगन है। जागे। फिर
खुदावन ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोट से बर्फ की मानी सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीना पर रख कर ढांक ले। उसने उसे सीना पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे सीना पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करे और पहले मौजज़े को भी ना माने तो वो दूसरे मौजज़ा के सबब से यकीन करेंगे, और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से भी यकीन ना करे और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन ये पर तीसरा मौजज़ा है। खुदा आपकी जिंदगी में कितने मौजज़े करता है, मेरी जिंदगी में कितने मौजज़ात हुए, आपकी जिंदगी में खुदा कितने मौजज़े करते हैं, लेकिन फिर भी हम और मौजज़ों को ढूंढ रहे हैं। पहले मौजज़ों को हम भूलते जाते हैं। हम पहले भूल जाते कि खुदा के बंदा ने दुआ की तो ये काम हमारी जिंदगी में हुए, ये काम हमारी जिंदगी में हुए, लेकिन एक काम भी रुक जाए तो हम कहते हैं वो असी दूसरी जगह पे जाने हैं, हम दूसरे के पास चले जाते हैं। हम खुदा को मजाक बना के बैठे हुए हैं। खुदा कहता अगर दो मौजों से यकीन नहीं आता तो तीसरा भी कर देना उसकी जिंदगी में, तीसरा भी उनको करके दिखाना। और तो दरिया से क्या करना है, पानी लेना और पानी को जमीन पे फेंकना, और जब वो पानी जमीन पे फेंका जाएगा तो वो खून बन जाएगा। ये तीसरा मौजज़ा खुदा उसको देता है। फिर भी मूसा क्या करता है, इनकार करता है। बढ़े आगे जरा। तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वह पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, मैं फंसी नहीं। अब फिर खुदा कहता है, खुदा से फिर कहता है, खुदा मैं फंसी नहीं, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूं। खुदा मैं नहीं ये काम कर सकता, मैं नहीं ये काम कर सकता। खुदा मैं भी ये काम नहीं कर सकता। खुदा किसी और को खड़ा करता है। जागे ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ, और मेरी जुबान कुंद है, और मेरी जुबान कुंद है, बहाना है। खुदा अगर सारा कुछ कर सकता है, ये बड़े बड़े मौजज़े कर सकता है। अगर मूसा एक बार खुदा से कहता है, खुदा तो मेरी जुबान तो ठीक कर दे, तो खुदा ने नहीं करनी थी, कर देनी थी, लेकिन वो भाग रहा था, वो इस खिदमत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदा उससे खिदमत लेना चाहता है। आज भी खुदा आपसे खिदमत लेना चाहता है। आप जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी भाग लें, लेकिन खुदा ने जो खिदमत आपसे लेनी है वो लेके रहेगा, नहीं तो फिर आपकी खिदमत किसी और को ट्रांसफर कर देगा। पढ़े जरा। तब खुदावन ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया? खुदा ने कहा आदमी का मुंह किसने बनाया है? और कौन गूंगा या बहरा या कौन गूंगा या बहरा, हाँ जी, या बीना या अंधा या बहरा, लूला लंगड़ा कौन बनाता है? खुदा कहता है ये सारा कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, और मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तो क्यों परेशान है, तो क्यों ये बातें करता है? आज भी खुदा हमसे हम कलाम है। खुदा कहता मैं हर काम करने की ताकत रखता हूँ, और रसौली नहीं मेरी खत्म हो गई, मेरा पुराना काम नहीं खत्म हो रहा। खुदा मैनू ते इंज होता वे, हम ऐसे करते हैं। खुदा कहता गूंगा कौन बनाता है, हर काम मैं करने की ताकत रखता हूँ। सिर्फ यकीन करें और खुदा के सामने झुक जाएं और खुदा से कहें खुदा मैं हाजिर हूँ, तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। जी पढ़े आगे। क्या मैं ही नहीं जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? क्या मैं ही खुदावंद नहीं हूँ जो ये सारा कुछ नहीं करता? सो अब तू जाओ और मैं तेरी जुबान का जुमा लेता हूँ। अब तू जा और मैं तेरी जुबान का क्या करता हूँ, जुमा लेता हूँ। तेरी जुबान को ठीक करूंगा, तो ठीक तरीके से बोलेगा। तू जा और ये सारे काम करना शुरू कर। लेकिन फिर क्या होता है? और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। हाँ जी। तब उसने कहा कि ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करना, खुदा मैं नहीं है खिदमत कर सकता, खुदा मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं बजा सकता। खुदा तू किसी और को कह दे, मेरे तो नहीं काम होता। यही काम मूसा कर रहा था। मूसा ने कहा खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ,
तू ये काम किसी और से करवा ले, मैं नहीं कर सकता। खुदा ने क्या कहा, पढ़े जरा। आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तो चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का। आज क्या खुदा का गजब हम पे नहीं भड़क सकता? जब हम अपनी खिदमत से भागेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, तो खुदा का कहर हम पे भी भड़कता है और फिर हम बाद में पछताते हैं। और फिर एक मिसाल है, अब पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह होता है कि कल को जब आपकी खिदमत किसी और के पास चली जाएगी तो फिर आप पछताएंगे और दाएं बाएं का बैज बड़ी देर तक खिदमत कर रहा सा अज किसी और नु करती देती है, हुण किसी और नु खिलाता है, हुण किसी और नु छोड़ लिया है। लेकिन ये खुदा की बातें हैं। खुदा कहता है, खुदा का गजब उस पर क्या करता है, भटकता है और खुदा उसकी जुबान को भी ठीक नहीं करता। और फिर क्या खुदा करता है, पढ़े जरा आगे। और उसने कहा कि अल्लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं। अब खुदा ने तब्दील कर दिया। खुदा ने कहा क्या लावियों में से तेरा भाई हारून नहीं है? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो फसीह है, मैं जानता हूँ कि वो फसीह है, वो ठीक तरीके से बोलता है और वो तेरी मुलाकात को भी वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है। मैंने उसको भेज दिया है। अब तेरी जुबान ऐसे ही रहेगी और तू जिंदगी भर रुक रुक कर हदों के ही बोलता रहेगा, लेकिन तेरे साथ ये काम अब नहीं होगा। तब तेरी जुबान का जुबान कौन बनेगा? हारून बनेगा। खुदा ने तब चेंज कर दिया। खुदा का गजब जब भड़कता है तो खुदा चेंजिंग कर देता है। ये ज़हन में रखें। खुदा ने कहा कि अब तेरा भाई हारून जो लावियों में से तेरा भाई है वो आ रहा है तेरी मुलाकात को, अब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा और तू उससे बात करना और वो आगे तेरी बात को पहचानेगा, बचा देगा। क्या अगर मूसा खुदा से ये कहता, जब उसने ये बात कही कि मैं ही गूंगे पैदा करता हूं, मैं ही लंगड़े पैदा करता हूं, मैं ये सारे काम करता हूं, तो तू क्यों परेशान है? अगर मूसा थोड़ी सी बात कर देता तो मूसा हकला ना रहता, उसकी जुबान उसी वक्त ठीक हो जाती। लेकिन मूसा अपनी खिदमत को छोड़ना चाहता, भागना चाहता था। आज खुदा हमें भी सजा देता है। खुदा हमारे घरों में परेशानियां डाल देता है, हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन हम सीखने के काबिल ही नहीं होते। हम सीखते नहीं हैं कि खुदा क्या कर रहा है, क्यों हमारी जिंदगी में ये काम हो रहा है, क्यों हमारे घर में ये काम हुआ, क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन हम भी मूसा की तरह इनकारी हैं। मैं नहीं खिदमत करनी, मैनू नहीं पता, तू किसी और नू कर दे। में खुश होगा, सो तो उसे सब कुछ बताना और ये बातें जो अब तो उसको सब बातें बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जुमा लेता हूँ। मैं तेरी और उसकी जुबान का क्या हूँ, जुमा लूंगा और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। हाँ जी। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा जी, और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। तू उसके लिए गोया खुदा होगा, तू गोया उसके लिए खुदा होगा। आज भी अगर आप समझ जाएं तो खुदा हम कलाम है। खुदा चाहता है कि आप अपनी खिदमत से भागना बंद कर दें, नहीं तो बहुत जल्द आपकी खिदमत जो है किसी और के पास चली जाएगी और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आप पछताते रहेंगे। मूसा को खुदा ने कहा कि ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। खुदा उसकी जिंदगी में मौजूद कर रहा है, तेरे वसीला से बहुत बहुत बड़े काम मैं करूंगा। लेकिन कितने कितने बड़े सांप को, लाठी को सांप बना दिया, कोर को साफ कर दिया, पानी को खून बना दिया, तो क्या खुदा जबान को ठीक नहीं कर सकता था? खुदा कर सकता था, लेकिन मूसा ने उससे मांगा ही नहीं। आज कई बार हम भी यही काम कर रहे होते हैं, मांगते नहीं है, इधर उधर भागने की कोशिश करते रहते हैं, भागते हैं कभी इधर कभी उधर, लेकिन हम भी भागम भाग में अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। पढ़ दें थोड़ा और तो इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। हाँ जी, पढ़े आगे।
तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में है जाऊं और देखो कि अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, जा सलामत जा। और खुदावन ने मिद्यान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और बेटा इसकी 27 से पढ़ दें, बस इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। 27 और खुदावन ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर अब खुदा ने हारून से बात की। पहले मूसा से बात करता है, मूसा को चुना गया, लेकिन अब खुदा हारून से बात करता है। हारून, तुम मूसा के पास जाओ, क्योंकि अब मैं तुझसे काम लूंगा। अब मैं तेरी जुबान बनाऊं, तेरे मूसा की जुबान तू बनेगा, क्योंकि मूसा भागने की कोशिश कर रहा है। जी, वो गया और खुदा के पहाड़ पर उसे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा। मूसा ने सारी बातें हारून से की कि खुदा ने कौन कौन सी बातें मुझसे की हैं, खुदा ने कौन से काम मुझसे लेने हैं। जी आगे, और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। हाँ जी। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया और हारून ने सब बातें जो खुदावन ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये अब मौजज़ों का यकीन लोगों ने कर लिया। जो आम लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, यकीन कर लिया। आज भी आम जो लोग हैं, जो सादा लोग हैं, वो मौजज़ों का यकीन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं मैं बड़ी दुआ करना है, मैं तो इबादत ही बड़ी करना, मैं तो बाइबल बड़ी पढ़ना है, मैं तो बड़ी हदिये देना है, मैं तो बड़े कन्वेंशन से जाना है, बड़े चर्चा से जाना है, वो यकीन नहीं करते। उनको सिखाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप एक सीखे हुए के सिखाने की। जब बच्चा होता है, छोटे बच्चे को आप सिखाएं। कल हम लकी रानी सर्कस देखने गए, बच्चों ने कहा जी लकी रानी सर्कस लगी, हमने भी जाना है। मैंने कहा चले। जब हम वहां पे गए तो मैं हैरान था कि 2 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा उस सर्कस में काम कर रहा है। वो बच्चों की तरह वो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। मैं क्या, इनकी जिंदगियां देख लो, इन्होंने ना तो पढ़ना है ना इन्होंने कोई और काम करना है। बचपन से इन्होंने सर्कस में काम करना शुरू कर दिया है। और अगर वो छोटी बच्ची को आप जाके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो आगे खड़ी है, सारे कर्तव्य करती है उनके साथ, जो वो बड़े करते हैं वही वो करती है। और जब बच्चे नजर आते हैं, बच्चों को भी देख रही थी बड़ी खुश होके कि वो बच्चे बाहर खड़े हैं, वो देख रही थी और साथ साथ क्या थी, सीखती थी। अगर वो बड़ी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उसको सिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका जिस्म उस लचकदार नहीं रहेगा, उसका जिस्म उस चीज में नहीं ढलेगा जिसमें उसके माँ बाप या उसको ढाल रहे। आज हमारी जिंदगियां भी वैसी हैं। जो लोग ये समझता बड़ी दुआ करता हूं, उनको सिखाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहते नहीं मैं तो दुआ ही बड़ी कर, मत राती 2 बजे उठ जाना है जी, रात में उठ के 2 बजे दुआ शुरू कर देना है, तो सुबह तक दुआ ही करता रहना है। और ऐसे लोगों को सिखाना बेहद मुश्किल है। वो लोग जो सादा लोग हैं उनको सिखाना उतना ही आसान है, क्योंकि वो शुरू से सीखते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया है कि वो बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, कभी उसको वो बालों से पकड़ के ऐसे उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और वो छोटी सी बच्ची सारे कर्तव्य उनके साथ करती जा रही। वो जैसे वो करते थे उनकी नकल करती थी, वो हाथ हिलाते थे, खुद भी हिलाती थी, वो सारा कुछ वो कर रही थी जो उसके बड़े कर रहे थे। आज हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। जो कुछ हम करते हैं, अगर हम बुरे काम करते तो हमारे बच्चे भी बुरे ही काम करेंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। अगर हम चोरियां करते हैं तो हमारे बच्चे चोरियां करेंगे। और अगर हम बेईमानी का पैसा अपने घर में लाते हैं तो कल को आपके बच्चे भी वैसा ही पैसा कमा के आपके घर में लाएंगे। मूसा ने कहा कि तू किसी और को ये खिदमत दे दे, तो खुदा ने हारून को चुन लिया। खुदा ने कहा ठीक है, अब तेरी जुबान तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन अब हारून तेरी जुबान बनेगा। और सादा लोगों ने क्या किया, जो वहां पे बैठे थे उन सब ने क्या किया, उन मौजों को
कबूल कर रहे हैं, उन्होंने मान गए कि वाकई ही खुदा तुम्हारी जिंदगियों में काम करता है और ये मौजे जो तुमने किए हैं ये खुदा की तरफ से है। आज जरूरत है कि हम इन चीजों पर यकीन करें, दाएं बाएं भागना बंद कर दें, अपनी खिदमत को छोड़ना बंद कर दें। शायद ये आज का मैसेज जो है, आपको पता है मैसेज मैं चुनता नहीं हूं, मैसेज चल रहे हैं खुदा की किताब में से, ये खुदा ही देता है सारा कुछ और खुदा की मर्जी थी कि आज ये मैसेज यहाँ पे होता। ये हम सब के लिए है। अगर मैं भी अपनी खिदमत को से भाग रहा हूं तो मुझे भी जरूरत है कि मैं अपनी खिदमत को पहचान जाऊं। आज अपनी अपनी खिदमत को पहचाने। तमाम कलीसिया में खुदा किसी ना किसी से काम लेना चाहता। जरूरी नहीं कि क्वायर गाने वाले बजाने वाले यही या टीम है या यूथ के लड़के हैं, लेकिन बल्कि खुदा आपसे भी काम, आप कह क्योंकि तो देखें कि खुदा मैं हाजिर हूं, तो मुझे दे खिदमत, खुदा मैं खिदमत करना चाहता हूं, मैं खिदमत करना चाहती हूं। कल एक भाई सुबह आ गया, हाथ में वो तेजाब पकड़ा, भाई साहब मुझे गाड़ी की चाबी दे, मैं गाड़ी दिलवाने जा रहा हूं, भाई साहब मैंने वॉशरूम धो के जाना है। खुदा उसको आगाह करता है, खुदा आज आपको भी आगाह करता है। खुदा खिदमत लेना चाहता है लेकिन आप खिदमत से भागते हैं। मूसा को खुदा ने कहा मूसा जा मैं तुझसे काम लूंगा, लेकिन मूसा ने क्या कहा, नहीं खुदावंत किसी होर नु कर दे, मैं नहीं करने तैयार, मैनू ते होर नहीं, मेरी तो जुबान ही खराब है, मैं क्या करूं। लेकिन खुदा का गजब उस पर भड़का। कहीं आज खुदा का गजब हम पे भी ना भड़क जाए, और अगर खुदा का गजब भड़केगा तो खुदा आपकी खिदमत किसी और को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा और फिर आप मुंह देखते रहेंगे। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों कुछ टाइम दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी बेटी बेटा कोई भी रहनुमाई कर सकता है, जो भी दुआ करना चाहता है दुआ कर सकता है। बेटे हरून के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे वक्त की गहराइयों से प्यारे यीशु, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है प्यारे खुदावंद। तेरे खुदावंद खुदा तू भला है और तेरी शफकत अपनी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है प्यारे यीशु। खुदावंद खुदा मैं दुनिया के पीछे भागा और दुनिया ने मुझे मरवा देना था प्यारे यीशु जी। तेरे खुदावंद खुदा मैं दुनिया को छोड़कर तेरे पीछे चल पड़ा हूँ और तेरे साथ चलूँगा जिंदगी भर रूह और सच्चाई से प्यारे खुदावंद। प्यारे यीशु तो मेरी ज़िंदगी में आ